everyone, welcome to the channel English Only Zone. Our series on tenses is going on, and today I am uploading the last video in this series, that is on perfect and perfect continuous tenses. I hope the previous two videos have helped you in understanding the concept clearly. So I want to give you one advice that watching videos is not enough. You should practice by speaking in English at your home, in your schools, and among your friends also. You must have heard a saying, practice makes a man perfect. So, to gain perfection, you must practice every day. Now, let's come to a topic, that is present perfect tense. The rule is subject plus has or have plus verb's third form and object. So, here has or have is written. So has is used with the singular subjects, that is he, she, it, or just one name, and have is used with plural such as they, we, you, I, etc., or more than one names, etc. Let's come to examples. The first example is I have done the work. Second is she has submitted her notebook. Third, it has faced many challenges. So, let's see the first example again. It is, I have done the work. If we translate this sentence in Hindi, what do we get? मैंने अपना काम कर लिया है. तो लास्ट में क्या आ रहा है? लिया है. The second is, she has submitted her notebook. उसने अपनी notebook submit कर दी है. Now the third is, it has faced many challenges. उसने बहुत सारे challenges face किए हैं. तो सारे sentences से हमें ये पता चल रहा है कि जो work है वो already finish हो चुका है. The work has already been finished just now. अभी जब हम ये sentence बोल रहे हैं तब तक ये work complete हो चुका है. I have done the work. It means मैंने अपना काम कर लिया है. बोलने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें पता चलता है दैट द वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन इन प्रेजेंट ओनली. अभी अभी हमने वर्क किया है. सो दोज सेंटेंसेस कम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और अगर हिंदी में हम इनकी पहचान की बात करें तो लास्ट में चुका है, किया है, लिया है, ऐसे वर्ड्स आते हैं. ओके, लेट्स कम टू द यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द फर्स्ट इज टू टेल अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स. Something which we have achieved. To tell about those things, we use present perfect tense. The example is, I have scored 100 in mathematics. So this is my accomplishment. I have achieved something. I have scored. मैंने मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं. देखो लास्ट में किए और हैं आ रहा है. The second is, he has climbed the Mount Everest. उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है. So already the work has been done. Now the second is to tell about the experience. When we tell someone about our experience related to something, then also we use present perfect tense. The first is, I have written 3 stories. मैंने 3 stories लिखी हैं. Already the stories have been written. The second is, it was the worst new year I have ever had. So it's my experience. I am telling कि ये जो न्यू ईयर था ये वर्स्ट न्यू ईयर था जो मेरा अभी तक निकला है. तो अभी तक के सारे न्यू ईयर्स में ये न्यू ईयर मेरा सबसे वर्स्ट था. तो यहाँ पर भी मेरा एक्सपीरियंस पता चल रहा है. सो आई हैव रिटन हैव हैड, हैज और हैव, एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ द थर्ड यूसेज इज फॉर समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट बट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट. सो व्हेन समथिंग starts in past and it continues till the present, for that also we use present perfect tenses. The sentence here is, they have spent whole of their life working for this company. तो यहाँ पर the starting has been done in past. उन्होंने कंपनी कब ज्वाइन करी? पास्ट में. और कब तक कंटिन्यू हो रहा है ये कंपनी में, वो कब तक वर्क कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक वर्क किया है कंपनी में. दे आर स्टिल वर्किंग इन द कंपनी. तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे बिकॉज उन्होंने पास्ट में कंपनी ज्वाइन करी थी एंड दे हैव स्पेंट होल ऑफ देयर लाइफ. वो अभी भी उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं.
पास्ट से लेकर अब तक प्रेजेंट तक वो उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं. So here also present perfect tense will come. Now another usage of present perfect tense is to describe an action which is repeated many times between past and present. एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना जो पास्ट और प्रेजेंट में मीन्स पहले से लेकर अब तक बीच में बहुत बार रिपीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड दिस मूवी मेनी टाइम्स. मैंने ये मूवी बहुत बार देखी है. ओके. Now the second is, you have not submitted your work every day. तुमने अपना वर्क रोज सबमिट नहीं किया है. So this action has been repeated many times. Past से लेकर पहले से लेकर अभी तक this action has been repeated. Now the another usage is to tell an action that has not yet finished. एक ऐसे action के बारे में बताना जो अभी तक finish ही नहीं हुआ है. Example is, it has rained a lot this month. It has rained in this month and this month is still not finished. Month अभी भी चल रहा है ये, तो हो सकता है आगे भी rain हो. The second is, it has undergone many changes till now. पहले भी changes हुए हैं और अभी भी changes हो सकते हैं. So it is an action that has not yet finished और हो सकता है आगे भी ये action continue हो. So this was the usage of present perfect tense. Now let's come to past perfect tense. The rule of past perfect tense is subject plus had plus verb's third form and then object. The examples are, the first is, the tiger had killed the man. Second, I had already saved my document when the computer broke down. Third, my brother had decided what to do before completing his graduation. So now, if we translate these sentences in Hindi, let's take the second sentence. I had already saved my document when the computer broke down. मैंने अपना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव कर दिया था जब कंप्यूटर ब्रोक डाउन हुआ. मीन्स कंप्यूटर ने वर्क करना बंद किया. जब कंप्यूटर ने वर्क करना बंद किया तब तक मैंने अपना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव कर दिया था. तो पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों के लिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज होती है जिसमें हमें पता चलता है कि हम ये काम पास्ट में मीन्स पहले ही कर चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो काम फिनिश हो जाता है लेकिन बोलने से जस्ट पहले, हमारे उस सेंटेंस को बोलने से जस्ट पहले फिनिश होता है प्रेजेंट परफेक्ट में. लेकिन पास्ट परफेक्ट में वर्क बहुत पहले फिनिश हो चुका होता है. Similarly, let's take the third example. My brother had decided what to do before completing his graduation. मेरे ब्रदर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था that what he has to do. Okay? Now usage of past perfect tense. The first is, it tells duration before something in the past. पास्ट में कुछ होने से पहले की ड्यूरेशन बताता है. Let's take example. We had this car for 10 years before it broke down. इस कार के खराब होने से पहले हमारे पास ये कार 10 years के लिए थी. We had यहाँ पर पास्ट परफेक्ट के लिए यूज हो गया. परफेक्ट के लिए हम had यूज करते हैं. एंड देन had, दूसरा had यहाँ पर किस लिए आया है? दूसरा had यहाँ पर पोजेशन के लिए आया है, कार की पोजेशन के लिए. कार अगर कहते हैं ना, जैसे आई से आई हैव अ कार, तो हैव यहाँ पर पोजीशन बताता है कि मेरे पास कार है. तो सिमिलरली हैव की अब हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट टेंस में. तो यहाँ पर हैड तो हैड की जगह आ जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड. और जो सेकेंड हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है. ओके. सो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जहां पर 2 times हैड लिखना पड़ता है. द second example is, we had owned this bungalow for more than 25 years. अब the past में 25 years तक हमारे पास ये बंगलो था. Now the second usage is to tell about the actions completed in the past. पास्ट में कुछ एक्शंस जो कंप्लीट हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. द फर्स्ट इज, I had never seen such a graceful dance before this. इससे पहले मैंने कभी भी इतना ग्रेसफुल डांस नहीं देखा था.
अब ये भी हमें पता चल रहा है कि ऑलरेडी हम पहले बहुत सारे डांसेस देख चुके हैं, बट वी हैड नेवर सीन, हमने कभी भी नहीं देखा ऐसा डांस, पास्ट में हमने कभी भी ऐसा ग्रेसफुल डांस नहीं देखा. द सेकेंड इज, you had already lost your wallet, now you want to lose your laptop. You had already lost your wallet. It means already past में तुम अपना wallet खो चुके हो, and now you want to lose your laptop. So these were the two usage of past perfect tenses. Now let's come to future perfect tense. The rule is subject plus will or shall plus have plus verbs third form plus object. So the examples are, they will have arrived here by 6 o'clock. The second is, you will have taken dinner by the time I reach your house. तो future perfect tense में कुछ ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी एक्शन के होने से पहले ही फिनिश हो चुका होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स ट्रांसलेट द फर्स्ट एग्जाम्पल इन हिंदी. They will have arrived here by 6 o'clock. वो 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे. तो फ्यूचर में ना, अब पहुंच जाएंगे से क्या पता चल रहा है कि वो काम अभी फ्यूचर में होगा. तो फ्यूचर में 6 बजने से पहले वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे. फाइन. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. यू विल हैव टेकन डिनर बाय द टाइम आई रीच योर हाउस. जब तक मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा तब तक तुम डिनर ले चुके होगे, तब तक तुम डिनर कर चुके होगे. तो फ्यूचर में मेरे पहुंचने से पहले ही तुम डिनर कर चुके होगे. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज होती है जिसमें हम फ्यूचर की कोई बात बताते हैं कि कोई एक्शन होने से पहले ही काम कंप्लीट हो गया होगा. लेट्स सी द यूसेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. It tells the action which will be completed before a certain time in future. That's what I explained you in the previous examples also. Let's see more examples. The first is, we will have cracked the deal before they can even think of it. उनके सोचने से पहले ही हम डील क्रैक कर चुके होंगे. The second is, you will have completed your studies before I come back from USA. मेरे यूएसए से वापस आने से पहले ही तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके होगे. तो किसी भी एक्शन के होने से पहले ही फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो जाना. दैट फॉर दैट वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई होप द यूसेज ऑफ दीज 3 टेंसेस आर क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So perfect continuous is the last subdivision in tenses. So in this, let's study the present perfect continuous tense. The rule is subject plus has or have plus been plus verbs ing form, then object, since or for plus time. Now has or have rule I have already told you that has is used with the singular subject and have is used with the plural subject. Now how to use since or for? See, since is used for a definite time. एक निश्चित समय के लिए हम since यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि ये काम कब हुआ, कब होना स्टार्ट हुआ. और for हम यूज करते हैं for indefinite time. कोई भी अनिश्चित समय जो होता है उसके लिए हम for यूज करते हैं. You will better understand with examples. The first is, the farmer has been working in the field since morning. Now farmer singular subject है, उसके साथ हमने क्या लिखा? has. Then been. Perfect continuous tense में been जरूर आता है. It's compulsory to use been here. The farmer has been. And then verb की ing form working in the field. Object आ गया where he was working in the field. And कब से वो work कर रहा था? Since morning. हमें पता है एक definite time है कि वो आज सुबह morning से work कर रहा था. तो उसके लिए हम since लिखेंगे. The farmer has been working in the field since morning. Let's take the second example. You have been ringing the doorbell for few minutes. You हम plural consider करते हैं तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? Have. We will not write has with you. So you have, then been is compulsory. Verbs ing form ringing. What he was ringing? The doorbell. You have been ringing the doorbell for few minutes. कुछ मिनट से तुम डोरबेल बजा रहे
हो। तो इसमें देखो कुछ मिनट, अब ये हमें नहीं पता कि कितने मिनट से डोरबेल बजाई जा रही है, तो अब इंडेफिनिट टाइम हो गया, तो उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। तो यू हैव बीन रिंगिंग द डोरबेल फॉर फ्यू मिनट्स, तुम कुछ समय से डोरबेल बजा रहे हो। Let's see the usage of present perfect continuous tense. The first is to tell about the duration from past till now. Means पहले से काम होना शुरू हुआ और अब तक वो कंटिन्यूएशन में ही है। देखो परफेक्ट का हमने रूल पढ़ा था कि जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूस टेंस वो उस काम के लिए यूज होती है जो अभी भी चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों टेंसेस आ रही हैं। So you have to keep in mind you will use this tense only where the work had been started in the past and it is still continuing. So the example is I have been completing my work for the last 1 hour. अब last 1 hour से मैं अपना work complete कर रही हूँ, means past में मैंने काम करना start कर दिया and still I am doing that. The second is she has been dancing continuously for 15 minutes. वो 15 मिनट से, अब 15 मिनट थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो 15 मिनट से कंटिन्यूसली वर्क डांस कर रही है। शी हैड स्टार्टेड डांसिंग 15 मिनट्स बैक, लेकिन वो अभी भी डांस कर रही है। द सेकेंड यूसेज इज फॉर पास्ट एक्शन विच हैज जस्ट स्टॉप्ड। पास्ट के किसी एक्शन के लिए जो अभी अभी फिनिश हुआ है और उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल अभी मिला है। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में अभी अभी फिनिश हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल अभी मिला। एग्जाम्पल इज आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। मैं अब थक चुकी हूं क्योंकि मैं भाग रही थी। मतलब आई हैव बीन रनिंग, मैं तब से भाग रही थी। आप आगे फॉर फ्यू मिनट्स भी आप आगे ऐड कर सकते हो, आई हैव बीन रनिंग फॉर एन आवर भी आप ऐड कर सकते हो। सो आई एम टायर्ड नाउ, मैं टायर्ड हूं, रिजल्ट इज आई एम टायर्ड. And what is the reason? Because I have been running for last 1 hour. Now let's come to past perfect continuous tense. The rule is subject plus had. Past perfect में हमने क्या यूज करा था? Had. तो उसका had आ गया यहाँ पर. Been, अब perfect और continuous का अपना एक स्पेशल भी तो कुछ टेंस होगा, तो उसके लिए हमने been लगा दिया. Then verbs ing form, इसके ये हमने continuous के लिए ले लिया है. Then object, then since for plus time. अब हमें रूल से ही पता चल रहा है कि इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों के ही कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। द एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट वन इज मदर हैड बीन कॉलिंग यू फॉर फ्यू मिनट्स। मदर तुम्हें कुछ समय से, कुछ मिनट से बुला रही थी। मीन्स पास्ट में बुला रही थी, ऑलरेडी वो बुला चुकी हैं, काम कंप्लीट हो चुका है। The second is he had been living in London since 1950. 1950, अब हमें पता है एग्जैक्ट ईयर, कब से वो 1950 में रह रहे हैं, कब से वो लंदन में रह रहे हैं, कब से? 1950 से। So he had been living, वो लंदन में 1950 से रह रहे थे। पास्ट टेंस है, had है। Okay, now let's come to the usage of past perfect continuous tense. The first is to tell about an action started in the past and continued in past only. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट तक ही कंटिन्यू हुआ, वो प्रेजेंट में आया ही नहीं। पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही फिनिश हो गया, कंटिन्यू होकर पास्ट में फिनिश हुआ। एग्जाम्पल, आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 3 hours. मैंने पास्ट में, मतलब 3 hours पहले मैंने स्टोरी लिखनी शुरू करी थी और उसके बाद 3 hours कंप्लीट होने के बाद मैंने उस स्टोरी को फिनिश कर दिया। तो पास्ट में मैंने स्टार्ट किया वर्क, कंटिन्यू भी पास्ट में हुआ और फिनिश भी पास्ट में हो गया। द सेकेंड इज दे हैड बीन टॉकिंग ऑल रबिश सिंस दे केम हियर. जब से वो यहाँ आए तब से वो सिर्फ रबिश ही बात कर रहे थे। तो जब से वो आए पास्ट में आए थे, बातें करी उन्होंने कंटिन्यूएशन में पास्ट में ही, और बातें उनकी फिनिश भी हो गई पास्ट में ही। द सेकेंड इज टू टेल अबाउट एन एक्शन दैट फिनिश्ड जस्ट बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट. पास्ट में कुछ ऐसा एक्शन हुआ जो दूसरे इवेंट से पहले ही फिनिश हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। द लॉबी वॉज वेट. पास्ट में हमें पता है कि लॉबी वेट थी, इट मीन्स पहले ही वेट थी वो। वाई? इट हैड बीन रेनिंग, बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। पास्ट में किसी एक्शन के होने से पहले ही कोई इवेंट फिनिश हो चुका है। पहले रेन हुई
और उसके बाद लॉबी वेट थी. Now let's come to future perfect continuous tense. We rarely use this future perfect continuous tense. बहुत कमी से इसको हम यूज करते हैं. The rule is subject plus will or shall plus have, been plus verbs ing form, then object, since or for, then time. तो will shall हम future में लगाते हैं, have perfect के लिए, वर्ब की ing फॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए, और बीन तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाते ही हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. द फर्स्ट इज दे विल हैव बीन डांसिंग ऑन पॉप म्यूजिक फॉर 15 मिनट्स. वो पॉप म्यूजिक पर 15 मिनट से डांस कर रहे होंगे. कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. They will have been preparing for my I will have been preparing for my exam for 1 month. फ्यूचर में मैं अपने एग्जाम के लिए 1 महीने से प्रिपरेशन कर रही होंगी. Now usage of future perfect continuous tense. To tell duration before something in the future. फ्यूचर में किसी की ड्यूरेशन बताने के लिए, कुछ वर्क होने से पहले कोई वर्क हुआ है उसकी ड्यूरेशन बताने के लिए. Let's understand with example. James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for London. It means लंदन जाने से पहले 1 साल तक James will be teaching in the university. लंदन देखो फ्यूचर में क्या इवेंट होगा, लंदन जाएगा, James will go to London. उससे पहले 1 year तक he will be teaching in the university. The second is I will not have been living here for over a year. 1 year होने के बाद, 1 year होने के बाद, I will not be living here. Now the second use of future perfect continuous tense is to tell about the reason of something which happens in future. फ्यूचर में कुछ हुआ उसके बारे में रीजन बताने के लिए. फ्यूचर में अगर कुछ भी होगा तो उसके बारे में हम अगर रीजन बताते कि ऐसा क्यों होगा, उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. The example is I will be tired because I will have been studying for 3 hours. मैं tired हो जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी because I will have been studying for 3 hours. मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी. फ्यूचर में मैं थक जाऊंगी और उसका रीजन क्या होगा कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही होंगी. So we use future perfect tense to tell about something, to tell the reason of something which will happen in future. So I hope this is clear to you, the use of future perfect continuous tense. And if you have understood, then you can write in the comment section so that I may come to know whether you have understood or no. And thank you so much for watching. Take care, everyone.